Hello students, how are you all? Today we'll start human physiology, and in human physiology we'll start chapter 16. That's name is digestion and absorptions. Okay, you know very well each and every living organism from small bacteria to huge elephant, from small aquatic animals like amoeba to huge aquatic animals like blue whale. Okay, from small plant to big tree, each and every living organisms depend on food for getting nourishment. Okay, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अब चाहे वो बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे ऑल डिपेंड ऑन food for getting nutrients. Okay, and you should know that nutrients like carbohydrates, protein, fat, lipids, vitamins, minerals, waters. Okay, these nutrients are essential for energy, for cell growth. Okay, and for different kinds of metabolic processes. Okay, without nutrients, energy production, cell repairing, cell growth formation will not take place in our body. Okay, you should know that about cell growth. Cell growth process occurs by the help of a process that is called cell division. Okay, when cell is divided, then new cells are formed. Okay, new cells form tissue make organ make organ system, and organ system make whole body. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, animals and plants, they show growth by the help of a process that is called cell division. But for these all process, ठीक है, बताया ना मैं आपको, मैंने ग्रोथ, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर सेल रिपेयरिंग, कि जो सेल होती है बेटा, हम वर्क करते हैं, अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. Cell division is also known as cell repairing and cell formation. Okay, but cell division, cell repairing process takes place in the presence of nutrients. ठीक है, तो आप समझें कि जो फूड है, फूड इज essential component for each and every living organisms. ठीक है, तो देखें food is major requirement for living organisms. Like bacteria, fungi, plants, animals, humans, etc. Okay, food contain nutrients carbohydrates, lipid or fat, protein, vitamin, minerals, water. ओके, तो आप समझे बेटा कि जो फूड है, फूड कंटेन different kinds of nutrients. Okay, like carbohydrates, lipid, fat, protein, vitamin, minerals and water. Okay, and I have told you nutrients are essential
for growth, energy production, and repairing. ओके, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एंड फॉर सेल रिपेयरिंग. ओके, ग्रोथ के लिए जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, ग्लूकोज दैट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ओके, एंड प्रोटीन एंड सम अदर न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर सेल रिपेयरिंग. बताया था मैंने आपको बेटा कि हर एक सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. After this, new cells are formed by the help of cell division. Okay, but you should know that cell division process also takes place in the presence of nutrients. Okay, एक बात मैं करूँगा आपसे वाटर की, ठीक है. आपको पता है बेटा कि each and every living organism is made up of by cell. Okay, cell consist different kinds of chemical elements. These chemical elements provide help for chemical reactions or metabolic reactions. ठीक है, कि जो वाटर होता है ना, वाटर इज also essential for metabolic reaction, or in other words we can say that water play major role for metabolic process. ठीक है, तो आप समझें. अब मेन आपको जानना है बेटा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन. ओके, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, इसके अलावा विटामिन, minerals, water, they are example of micro nutrients. ठीक है, कि विटामिन में से विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी दैट एक्ट्स एज इम्यून बूस्टर. ओके, विटामिन डी, विटामिन ई. ठीक है, तो ये मिनरल्स हो गए जैसे Na+, K+, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल्स. तो ये सब किसके में आते हैं बेटा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में. लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, अभी जस्ट बताया आपको मैंने कि वाटर प्ले मेजर रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know that what is the mean of your nutrition. You know very well, food contain different kinds of nutrients for taking nutrients by depending on food. It is called for taking nutrients from outside. It is called nutrition. Okay, and there are 4 types of mode of nutrition. First, autotrophic mode of nutrition. Okay, second,
हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो लास्ट है बेटा, इट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, समझ रहा है इस चीज को, ये दिख नहीं रहा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophs show autotrophic mode of nutrition. Autotrophs are those living organisms that synthesize their food by themselves. Okay, and autotrophs term is made up of by two words, auto plus trophs. Here auto means self and trophs means nourishment. ठीक है, ये वो living organisms होते हैं बेटा, they produce their food by themselves. Okay, अब एग्जांपल दूंगा बेटा मैं आपको ऑटोट्रॉप्स का, ठीक है। कुछ तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं बेटा वो एल्गी और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एंड देयर आर सम अदर living organisms that also synthesize their food by themselves. Okay, and they are known as chemotrophs. क्या कहलाते हैं बेटा, वो chemotrophs कहलाते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर chemotrophs, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू नो दैट अबाउट autotrophs, and example of autotrophs are plants. Okay, you know very well, plants are those living organisms that synthesize their food by themselves by the help of a process that is called photosynthesis. Okay, for preparing their food they use solar energy. Okay, you know very well, the color of plant leaves become greens due to presence of a green pigment that is called chlorophyll. Okay, chlorophyll and sunlight, they both play major role for photosynthesis reaction, or simply because that in the presence of sun energy, by using raw materials like carbon dioxide and water molecules, okay, they prepare their organic food materials that is called starch और glucose, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि जो प्लांट लीव्स होती हैं, ठीक है, प्लांट लीव्स के भी अपर लेयर और लोअर लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मल रीजन, ठीक है। तो they consist many tiny pores and these pores are known as stomata. By the help of stomata they capture raw materials from outside, CO2 and H2O, ठीक है। और जो सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो आप रिएक्शन देखें बेटा फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस में कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। 6 CO2 प्लस 6 H2O, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ बेटा आप समय स्टोमेटास की, ठीक है। रो मेटेरियल्स अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है, और बताया मैंने बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ
क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट that present in a chloroplast, ठीक है, chloroplast is a special kind of cell organelles that is a type of plastid, ठीक है। देखो पता होना चाहिए बेटा आपको कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स, दे कंसिस्ट वन स्पेशल काइंड ऑफ सेल organelles that is called plastid. Plastid is absent in animal cell. Plastid is of three types. First chloroplast, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर के अंदर। अभी आपको समझना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और इनके भी टाइप्स होते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है। लेकिन अभी आप मेनली समझें, ठीक है, कि ये पिगमेंट ये हेल्प करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, और जो मेन है एनर्जी वो कौन सी है बेटा, सोलर एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो गई, ठीक है, कि इसमें जो प्लांट फूड फैक्ट्रीज हैं, प्लांट फूड फैक्ट्रीज कौन सी हैं, लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंदर जो फूड बना है, ठीक है, वो किस फॉर्म में बना है बेटा, स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर यूनिट्स, की बहुत सारी जो शुगर यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज, ठीक है, वो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगी, स्टार्च, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा अपना, ठीक है, कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू दी ग्लूकोज, समझ रहे हैं आप उस चीज को, तो उसको आप ग्लूकोज मान लें। लेकिन इसका ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मेटेरियल्स होता है बेटा, इट इज स्टार्च दैट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया बेटा, कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन से, प्लांट्स और ग्रीन एल्गी, ओके, दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि ये अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, औरों के लिए, ठीक है, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, और औरों के लिए, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उन कंज्यूमर्स के लिए फूड कौन बनाता है बेटा, प्लांट्स बनाते हैं। तो क्या बोला है प्लांट्स को, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। कीमोसिंथेसिस प्रोसेस इज शोन बाय कीमोट्रॉप्स, कीमोसिंथेसिस, और ये कौन शो कर रहा है बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके, एंड सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास बैक्टर, ठीक है, फेरस ऑक्सीडेंट बैक्टर्स, ओके, दे शो chemosynthesis process to produce their organic food materials, okay, but here you should know that what is the difference between photosynthesis and chemosynthesis, okay. In case of photosynthesis, plant leaves use solar energy, ठीक है, फोटोकेमिकल एनर्जी, ओके, बट इन दिस प्रोसेस कीमोसिंथेसिस, ठीक है, कि जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एनर्जी, this chemical energy is utilized by these organisms, okay, and in this process, chemosynthesis process, inorganic matters convert into organic matters, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा बेटा, अपना फूड बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर्स
C6H12O6, ठीक है, अपना फूड बनाएगा, सल्फर को रिलीज करेगा, ठीक है, और समझ रहे हैं आप चीज को। तो ये मतलब कहने मतलब ये है सिंपली कि कीमोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं दे कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, ओके, एंड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो एनर्जी निकलती है बाहर, ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दीज कीमोट्रॉप्स, ठीक है, एग्जांपल आपको दे चुका हूं मैं, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर का, नाइट्रोसोमोनास बैक्टर्स का, ठीक है। तो ये जो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और आप समझेंगे कि इसके भी जो टाइप्स बताए अभी आपको मैंने, ठीक है, एक तो फोटोसिंथेसिस दैट इज शोन बाय ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, एंड दूसरा कीमोसिंथेसिस दैट इज शोन बाय कीमोट्रॉप्स, याद रख लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब बात हम करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। Our second topic is heterotropic mode of nutrition. Heterotrophs show heterotropic mode of nutrition, okay, and you have to know that what is the meaning of your heterotrophs. Heterotrophs are those living organisms that depend on others for getting nutrients, ठीक है। अब जैसे बताया आपको मैंने कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कौन है? हर्बीवोर्स है, ठीक है, वी आर ओमनीवोर्स, वी डिपेंड ऑन बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हम भी डिपेंड किसके ऊपर हो गए? प्लांट्स के ऊपर, फॉर गेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ओके, तो हम कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि जो एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, they are called heterotrophs, and heterotrophs show heterotropic mode of nutrition, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर बेटा कुछ टाइप्स हैं heterotropic mode of nutrition के अंदर, जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In case of holozoic mode of nutrition, large complex food particles enter into animal's body, or simply we can say that animals ingest complex food materials, okay. These complex food materials are digested or broken down into the simple substances, okay. This type of mode of nutrition इज शोन बाई होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम भी जो एग्जांपल्स है बेटा, हमारा भी किसका एग्जांपल है? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है, एंड बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दीज कॉम्प्लेक्स फूड मैटर्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मेटल्स, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको बेटा कि फूड कंसिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और लिपिड्स, ओके। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, it is digested into simple form that is called amino acid, ठीक है। और डाइजेशन में हेल्प कौन करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फैट की, फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो आप समझें, तो होलोजोइक में क्या है बेटा कि जो एनिमल्स होते हैं, animals they ingest complex food matters and these complex food matters are broken down into the simple food substance। तो अब देखें, एनिमल्स ingest complex food materials, these complex food is
broken down or digested in the presence of digestive enzymes. Okay, this complex food is broken down into the simple food materials. Okay, this type of mode of nutrition, it is called होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम बात करें बेटा अमीबा की, ठीक है, आपने सुना होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि अमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ओके, बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया दे कैप्चर फूड पार्टिकल्स। ओके, आफ्टर दिस these food particles enter into the food vacuole for digestion, ठीक है, and during digestion I have told you complex food particles are broken down into the simple food particles, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मैटर्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड मैटर्स के अंदर इनसाइड द बॉडी। ओके, दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स हैं वो देखें, ठीक है। एक तो फर्स्ट क्या होगा बेटा, इंजेक्शन, कि भाई पहले तो वो कॉम्प्लेक्स फूड मैटर्स को इंजेक्ट करेंगे एनिमल्स। सेकंड, डाइजेशन। नंबर थर्ड, एब्जॉर्प्शन। नंबर फोर्थ, एसिमिलेशन। नंबर फिफ्थ, इजेशन। ओके, these 5 steps of होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे इंजेक्शन, इंजेक्ट करना फूड मैटर्स को, डाइजेशन होना इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बताऊंगा अभी डाइजेशन भी कितने तरह का होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, कि जो यूजफुल फूड मैटर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, यूजफुल फूड मैटर्स सप्लाइड इनटू द ईच एंड एवरी सेल। उसके बाद में इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है, फूड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कि जो काम की चीज़ थी बेटा वो तो पूरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। अब जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट जो फूड पार्टिकल्स हैं या वेस्ट जो मैटर्स हैं, इट इज़ रिलीज्ड आउट फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। अब हम बात करें बेटा कि होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में भी हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, बताइए, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिवोर्स भी हो सकते हैं, फ्रूगीवोर्स भी हो सकते हैं, पिसीवॉर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि भाई होलोजोइक में से मैंने बोला है हर्बीवोर्स, ठीक है, यू नो वेरी वेल, हर्बीवोर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, डिपेंड ऑन प्लांट्स। जैसे डियर है, काऊ है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल है। दे डिपेंड ओनली ऑन प्लांट्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट। बात मैं करूँगा ओमनीवोर्स की। ओके, omnivores are those living organisms that depend on both plants and animals. We are example of omnivores. Carnivores are those living organisms that depend only on flesh, ठीक है, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर गेटिंग फ्लैश और मीट, ठीक है। फिर बात करूँ फ्रूगीवोर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ओनली ऑन फ्रूट फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। फिर बात है ग्रेनीवोर्स, ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं बेटा, ये वो बर्ड्स हैं दैट डिपेंड ओनली ऑन ग्रेन्स। जैसे पिजिन है, पिजिन किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है। फिर बात करूँ मैं इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स आर दोज प्लांट्स, इंसेक्टिवोर्स होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन फ्लाइंग इंसेक्ट, दे trap flying insect for getting nourishment. Example of insectivorous plants like pitcher plants, वीनस प्लांट, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई जैसे वीनस प्लांट, पिचर प्लांट्स, एक और था आपका ब्लेडर प्लांट्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स किसके, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के, ठीक है। ये सब क्या शो कर रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो टाइप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। कि देखो इसमें हेटरोट्रॉप्स के अंदर ये सभी आते हैं जिनका आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया है ना, ये सारे हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। अब जो सेप्रोट्रॉप्स है ना, सेप्रोट्रॉप्स में आएगा बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है, दे आर डिकम्पोजर्स, ठीक
ठीक है। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, दे शो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये बेटा है तो एक तरह से हेटरोट्रॉप्स ना, समझ लो आप इस चीज़ को, क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं, ये डिपेंड है डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर। अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स का, ये प्लांट्स हैं लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स के ऊपर। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से हेटरोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक, ये इसके पास चल रहा है बेटा, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स, एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया, depend on dead and decaying materials, ठीक है। होता क्या बेटा कि जो डेड और डिकेइंग मेटल्स होते हैं, ठीक है, उन पे क्या बेटा ये अपना रोल, उन पे क्या करते हैं ये बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ड्यू टू दिस they convert soluble organic form of these matters, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो soluble organic matters होता है, it is absorbed by सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा इसको कि दे शो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, एंड दे शो decomposition process, because I have told you these saprotrophs are also known as decomposers. They show decomposition process, they depend on dead and decaying materials for getting nourishment, okay। अब हम बात कर रहे हैं कि एक बेटा आपको मैंने थर्ड बताया है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो भी एक तरह से बेटा उसको आप इंक्लूड कर लें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स भी डिपेंड अब किसी और के ऊपर हैं, ठीक है, वो अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं, समझ लो आप उस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स शो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आवर टॉपिक इज ये थर्ड था बेटा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। पैरासाइट्स शो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट and ectoparasite. Endoparasite, example liver fluke, tapeworm। ectoparasites बेटा lice, ticks। अब क्या बेटा, एंडोपैरासाइट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर इनटू द होस्ट सेल फॉर गेटिंग नरिशमेंट। जैसे लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक अगर बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, इट एंटर्स इनटू द लिवर सेल फॉर गेटिंग नरिशमेंट। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कि जो पैरासाइट्स होता है बेटा ये भी एक तरह से हेटरोट्रॉप्स हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। अब जो टैपवर्म है, व्हेन टैपवर्म एंटर इनटू द ह्यूमन्स बॉडी देन इट सर्वाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट्स का, जैसे लाइस।
बालों में जुआ लग जाती है ना, तो वो लाइस है, ठीक है, कि वो भी नरिशमेंट जब ब्लड को सक कर रही हैं तो उससे क्या ले रही है बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं, ठीक है। फिर बात करूँ मैं टिक्स की। टिक्स मीन्स कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, छोटे स्मॉल एनिमल्स, जो ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल्स बॉडी, काऊ, गॉट, ठीक है, शीप, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर वो चिपक जाते हैं, टिक्स जो होते हैं, ठीक है, और चिपकने के बाद दे सक ब्लड, ठीक है, दे सक ब्लड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई दे शो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है। तो आप समझें ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा था बेटा, जो बताया था आपको मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो था मिक्सोट्रॉपिक। क्या था बेटा? मिक्सोट्रॉपिक। नाम से आप समझ गए होंगे, मिक्सो मीन्स क्या हो गया? मिक्स, मिक्सो ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, यूग्लिना, ओके, यूग्लिना शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। इट शो फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक mode of nutrition and it also show saprotropic mode of न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप देखें बेटा, जो यूग्लिना है ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो कर रही है। एक तो कौन सा बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई अपना फूड खुद बना सकती है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट शो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बेटा इसको आप दोबारा समझें, ठीक है। ये उसमें मतलब बताना मैं भूल गया था, कुछ होते हैं बेटा एग्जाम्पल डेट्रीवोर्स के, ठीक है। डेट्रीवोर्स में आता है बेटा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है। जो अर्थवॉर्म होता है ना बेटा, ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। कहाँ डिपेंड होता है बेटा? वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर फॉर गेटिंग नरिशमेंट। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी शो कर रहा है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि जो डिपेंड है मतलब किसके ऊपर? डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर, यानी ये भी एक तरह से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, जो अर्थवॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि कुछ जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं बेटा, दे शो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विदाउट ईच अदर, विदाउट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दे डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो एनिमल्स जो हैं बेटा, जैसे एनिमल्स ए और एनिमल्स बी, ठीक है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है, कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? सिम्बायोटिज्म और म्यूचुअलिज्म, ठीक है। आप समझें इसे। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेशन के बारे में हमें समझना है, ठीक है। और मेनली बेटा इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी बताया बेटा आपको मैंने कि वी आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वी शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, okay, and I have told you holozoic mode of nutrition consists some steps: the first ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth egestion, okay। डाइजेशन मैंने बताया बेटा आपको कि जो होलोजोइक ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, दे इंजेक्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, ठीक है। क्या इंजेक्ट करते हैं बेटा? वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो फूड मैटर है बेटा, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड मैटर by the help of a process that is called digestion, okay, and this digestion process takes place in a system that is called
डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब पता है कि जब सिस्टम मैंने बोला है तो सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या है बेटा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ह्यूमंस का, इट इंक्लूड्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। ओके, लाइक स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब प्रेजेंट होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हमें मेन क्या समझना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन and second is chemical digestion। ओके, पहले तो आप ये चीज जाने बता चुका हूं आपको मैं कि कॉम्प्लेक्स फूड मैटर्स, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स, these complex food matters are broken down into the simple food matters by the help of a process that is called digestion, and this digestion process takes place in digestive system. Okay, and I have told you there are two types of digestion process, mechanical digestion and chemical digestion. Okay, mechanical digestion process takes place in a mouth। ठीक है, माउथ में बेटा जैसे बताया ना कि भाई जैसे हमारे पास जो टीथ हैं, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या है बेटा जो टीयर्स हैं, सॉरी जो टीथ हैं, ठीक है, जो ये टीथ हैं ये क्या करते हैं बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको मतलब ब्रेक्स करते हैं इनसाइड माउथ। ठीक है, उसको टीयर्स करते हैं, मतलब उसको फाड़ते हैं। ठीक है, समझ लो आप इस चीज़ को। और जो सलाइवा है हमारे माउथ के अंदर, सलाइवा मिक्स विद स्मॉल फूड पार्टिकल्स। ठीक है, वो सलाइवा मिक्स हो जाती है उसके अंदर। तो यानी कि एक लिटिल बिट डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन अवर माउथ एंड दिस डाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर, वहाँ मिक्स होता है वो एसिड के साथ, एसिल के साथ। ठीक है, फिर वो कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ रहे हैं, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन chemical digestion process takes place। ठीक है, and during this chemical digestion process different kinds of digestive enzymes, ठीक है, different kinds of digestive enzymes breaks complex food particles into simple food particles। okay, for example प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बेटा, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। अगर आप यहाँ बात करेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पर होंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, अब मेन जो था बेटा, ठीक है, मेन जो था बताना आपको बेटा, ये मेरा मकसद था आपको सिर्फ डाइजेशन के बारे में बताना। ठीक है, कि भाई जो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन होता है इट इज़ होलोजोइक, इट इज़ हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा कि इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस complex food particles are broken down into the simple food particles by the help of digestive enzymes। okay, and I have told you there are two types of digestion process that occurs in humans, mechanical digestion and chemical digestion। mechanical कहाँ पर है आपको मैंने माउथ के अंदर, ठीक है, जिसमें सलाइवा का एक मेजर रोल है और हमारे टीथ का। ठीक है, फिर उसका फूड कहाँ पे जाता है बेटा, स्टोमक में, स्टोमक में एसिड से मिक्स होगा, फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड मैटर्स के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ये हमें पढ़ना है बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि भाई कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, और उनका क्या रोल होता है फॉर फूड डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर मतलब जो फूड डाइजेशन जो कह सकते हैं कि भाई उसमें इनका क्या रोल है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, दैट मेक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।